ہر کول کو اگر ہم پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی۔ تھر انرجی لمیٹڈ بلاک 2 اور تھر کول مائنز فیز 2 کا افتتاح معاشی ترقی کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے۔ تھر میں 175 ملین ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں۔ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کریں تو یہ 300 سال کا خزانہ ہے۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے تمام پاور پلانٹس کو تھر کے کوئلے پر منتقل کرنا ہوگا۔ 23 مارچ تک تھر کول کو ریل سے منسلک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کو تھرکول منصوبے پر بریفنگ۔ مقامی کوئلے سے 10 روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہوگی، کثیر غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم کا تھر انرجی لمیٹڈ کے کنٹرول روم کا بھی معائنہ، پروجیکٹ پر کام کرنے والی خواتین ڈرائیور سے بھی ملاقات۔ پاکستان کے لیے عالمی اعزاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کی تنظیم کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کا اظہار تشکر۔ عمران نیازی کی ہر بات میں فتنہ، شر اور سازش ہے۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تو اپنے مخالفین کی ریکارڈنگز کو جائز قرار دیتا تھا۔ عمران نیازی کو نہ مطلب کی JIT ملے گی، نہ ہی اس کی مرضی کی ایجنسیاں ملیں گی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ فارن فنڈڈ فتنے کی پوری پلاننگ بے نقاب ہو چکی۔ عمران خان ملکی مفاد کو داؤ پر لگانے اور اقتدار کی خاطر ہارس ٹریڈنگ کرنے کا جواب دیں۔ عدالت جانے سے پہلے JIT میں پیش ہوں، یہ عدالت نہیں جیل جانے کا وقت ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے۔ کچھ لوگ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ آڈیو لیکس نے حقیقی آزادی کے بیانیے کا پول کھول دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ پر تشدد اور لاٹھی چارج قابل مذمت ہے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جعل سازی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سیاسی آقاؤں اور عمرانی فتنے کے اعلی کار بن کر 4 سال پرانے مقدمے کے ریکارڈ میں جعل سازی کی۔ جعل سازی کرنے اور عدالت کو گمراہ کرنے کے جرم میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ 15% پر برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ عمومی مہنگائی اور جاری کھاتے کے خسارے میں کمی آئی، روپے کی قدر مستحکم اور مضبوط ہوئی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحکم۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 95 پیسے سستا، قیمت 217 روپے 97 پیسے ہو گئی۔ سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی، 100 انڈیکس میں 126 پوائنٹس کا اضافہ۔ سونا فی تولہ 700 روپے سستا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف اسد عمر کی درخواست خارج کر دی۔ امن و امان کا معاملہ ایگزیکٹو نے دیکھنا ہے، عدالت کبھی مداخلت نہیں کرے گی۔ احتجاج یا ریلی نکالنے کا طریقہ ہے جس کے لیے اجازت لینا ہوتی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ۔ معیشت کسی احتجاج کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد کی تاجر برادری شدید متاثر ہوتی ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو شہر سے باہر کوئی مخصوص جگہ دی جائے۔ وزیر داخلہ تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر جمشید شیخ کی نیوز کانفرنس۔ محمد کامران ٹیسوری نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سمیت MQM پاکستان کے رہنماؤں اور اعلیٰ حکام کی تقریب میں شرکت۔ گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن کریم کو ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔
ایوان صدر میں پروکار تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اعزاز عطا کیا۔ چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی مہم، بروقت تشخیص سے چھاتی کے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ بریسٹ کینسر پر قابو پانے کے لیے انسداد پولیو تجربات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا مرض سے آگاہی کے لیے کردار ادا کرے، صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پہلی برسی۔ وہ ملک کے ایٹمی پروگرام کے بانی تھے۔ مئی 1998 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، ضلع اسلام آباد میں 2 نوجوان شہید، شہادتوں کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج، حریت قیادت کا عالمی برادری سے ماورائے عدالت قتل روکنے کا مطالبہ۔ بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ، بی جے پی رکن پارلیمنٹ کا مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان، شرکاء سے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا حلف لیا۔ مسلمانوں کی دکانوں سے اشیاء کی خریداری بند کر دیں، مزدوری بھی نہ دی جائے۔ ہندو انتہا پسند رکن پارلیمنٹ کی ہرزہ سرائی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر انرجی لمیٹڈ بلاک 2 اور تھر کول مائنز فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تھر کول معاشی ترقی کے لیے گیم چینجر اور علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ سی پیک کے تحت توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری چین کا بڑا تحفہ ہے۔ تفصیل بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تھر کول کی ترقی سے نہ صرف پاکستان کے دیرینہ توانائی کے مسائل حل ہو سکیں گے بلکہ درآمدی ایندھن پر خرچ ہونے والا خطیر زر مبادلہ بچا کر عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا سکے گا۔ تھر کول کو اگر ہم پروموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا، پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 24 ارب ڈالر خرچ کر رہی ہے۔ تھر کول کے ذخائر کا استعمال نہ کرتے ہوئے قوم کی محرومیوں کو دور نہ کرنا ایک بڑا ظلم ہوگا۔ اس سے زیادہ اور کوئی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی کہ مہران کی وادیوں میں اتنا بڑا خزانہ ہو، اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچے۔ اب ہمیں مل کر انشاءاللہ دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بنے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان منصوبوں سے عام آدمی کو جہاں سہولیات میسر ہوں گی وہیں ملک کی معیشت بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی۔ 175 بلین ٹن کوئلہ موجود ہے اور اگر جس طرح بتایا گیا کہ 1 لاکھ میگا واٹ اگر آپ سالانہ بجلی تھر کول سے پیدا کریں تو 300 سال یہ خزانہ آپ کے پاس موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تھر کول مائنز بلاک 2 منصوبے سے تھر کے کوئلے کی قیمت 67 امریکی ڈالر فی ٹن سے کم ہو کر 44 ڈالر فی ٹن کی جا سکے گی، جو مکمل توسیع کے بعد مزید کم ہو کر 30 ڈالر فی ٹن ہو جائے گی، جس سے بجلی کی قیمت کو 10 روپے فی یونٹ تک کم کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ترجیحات میں کوئلے کے ساتھ ساتھ قابل تجدید توانائی کے ذرائع بشمول سولر، ونڈ اور ہائیڈل کو بروئے کار لا کر عوام کے لیے صاف اور سستی بجلی پیدا کرنا شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت قدرت کے اس انمول تحفے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ کوئلے سے بجلی کی پیداوار سے کثیر ملکی زر مبادلہ کی بچت کے ساتھ ملک میں توانائی کے حصول میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے تھر انرجی لمیٹڈ کے کنٹرول روم کا معائنہ کیا اور منصوبے پر کام کرنے والی خواتین ڈرائیورز اور ROs سے ملاقات بھی کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تھر پارکر پہنچے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ چین کے سفیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے تھر انرجی لمیٹڈ بلاک 2 اور تھر کول مائنز
के फेज 2 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने मंसूबे पर काम करने वाली खवातीन डंपर ड्राइवर्स से भी मुलाकात की। थर में 52 खवातीन ट्रक ड्राइवर्स हैं जो डंपर चलाती हैं और 11 खवातीन आरओ प्लांट्स चलाती हैं। आप सब ट्रक ड्राइवर हैं, ये जो डंपर ट्रक्स है जो आते हैं बड़ा हैवी ट्रक्स है 60 टन तो हर काम चाहिए हो आप क्या चाहते हैं, ये तो उनसे बेहतर चलाते हैं सीएम साहब, अब और काम इनको दे सकते हैं क्या क्या। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को दौरे के दौरान थर एनर्जी ब्लॉक 2 के कंट्रोल रूम का भी मुआयना कराया गया। इस दौरान वजीर आजम को कंट्रोल रूम के काम से मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी। थरकोल माइंस 2 के मुआयने के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया कि थरकोल पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हुकूमत सिंध ने सख्त मेहनत के बाद $750 मिलियन खर्च करके थर का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक थर में 175 मिलियन टन कोयला मौजूद है। थरकोल के कुल 13 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 पर काम कर रहे हैं। कोयले से 660 मेगावाट पावर प्लांट पर काम शुरू किया गया है। 2022 के आखिर तक पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी और कोयले से बिजली की पैदावारी मद से 2022 के आखिर तक कौमी खजाने को $2 बिलियन का फायदा होगा। दिसंबर 2022 तक थरकोल ब्लॉक 1 से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे $1.2 बिलियन का ज़र मुबादला महफूज होगा। दरामदी कोयले पर चलने वाली बिजली के कारखाने जब थर के कोयले से चलेंगे तो $105 बिलियन का ज़र मुबादला महफूज होगा। थर का कोयला 70 मेट्रिक टन अगर फी साल बरामद किया जाए तो ज़र मुबादला की मद में $4 बिलियन का फायदा होगा। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को बताया कि थर कोयला प्रोजेक्ट्स के मुनाफे से स्कूल्स और अस्पताल कायम किए गए हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और थरकोल माइंस के फेज 2 के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर शहबाज स्पीड से चले तो 1 साल में ग्रीन एनर्जी इनकलाब लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तफसील बताएंगे शिराज दाहरी। मुल्क में बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने और मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम मंसूबे थरकोल पावर प्लांट के 330 मेगावाट के बिजली घर के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि थर पार के कोयले से पूरे पाकिस्तान की तरक्की मुंसलिक है। थर बदलेगा पाकिस्तान की सोच की बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल पहले रखी और आज पूरे मुल्क को इस मंसूबे से फ़ायदा हो रहा है। थर ने बदला है पाकिस्तान और आगे जाके कैसे हम थर का एग्जाम्पल के साथ आगे काम करते हुए मजीद बदल सकता है पाकिस्तान। और हम इसी तरीके से थर के मॉडल पे मुख्तलिफ अजला में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकेंगे तो हम अपने ये इस सैलाब के बाद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले। अगर हमने शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दोस्त मुल्क चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली हो या सीपेक मंसूबे, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और आवाम की मदद की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि थरकोल ब्लॉक 2 का संग बुनियाद 2014 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने रखा। आज ये मंसूबा मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल की जमानत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था और वो जो नारा था उन्होंने लगाया था पहले कि थर बदलेगा पाकिस्तान। उसी सिलसिले में 96 में यहाँ थर आके उन्होंने माइनिंग का आगाज किया था। अगर उस वक्त इन पावर प्लांट्स पे काम शुरू हो जाता आज पाकिस्तान एक बदला हुआ मुल्क होता। तकरीब से दोस्त मुल्क चाइना के सफीर नॉम जोंग ने अपने खिताब में कहा कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान में तरक्की और माशी मंसूबों की जल्द तकमील को तरजीह दी है। तकरीब से हबको पावर कंपनी के चेयरमैन हबीबुल्लाह, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने भी खिताब किया। 330 मेगावाट कोल पावर प्लांट को 4.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया गया, जिस पर $550 मिलियन लागत आई है। थरकोल मंसूबों की तकमील से न सिर्फ बिजली पैदा होगी बल्कि इन मंसूबों से कई सालों तक बिजली हासिल की जा सकती है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, थरपारकर। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए आलमी एजाज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की तंजीम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। UN के
195 रुकन ममालिक में से ये एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आया है। कोप 27 की सदारत मिस्र के पास है। सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मौसमी तब्दीलियों और इनके असरात पर आवाज़ बुलंद करने पर COP27 इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास शर्म शेख मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक होगा। इजलास में आलमी सरबराहान, हुकूमतों के सरबराह, आलमी मालियाती इदारों और थिंक टैंक्स के सरबराह शिरकत करेंगे। मालियाती तब्दीलियों के मसाइल के हल से मुतालिक ये 27वां इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने SCO के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत को कौंसिल और जनरल असम्बली के इजलास में मालियाती तब्दीलियों पर मौसर आवाज़ उठाई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मालियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाले सैलाब के बाद इक़दामात और मुतासरा इलाकों के दौरे किए और मुतासरीन के लिए फौरी नकद रकूम की अदायगी समेत खुराक, खेमे और अशिया ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर इस्लामी मुल्कों, आलमी रहनुमा और तंजीमों ने फौरी मदद शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने फौरी तौर पर $160 मिलियन की फ्लड फ्लैश अपील की और बाद में इसे $816 मिलियन तक बढ़ा दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली की तंजीम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 की जानिब से शरीक सदारत देने पर शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि दुनिया मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज की शिद्दत को तस्लीम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से हमारी तहजीब और तरक्की को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम्हारी बात की इसलिए कोई हैसियत नहीं है क्योंकि जब तुम वजीर आजम थे तो अपने मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज करार देते हुए उसको हलाल कहते थे। तुम कहा करते थे कि एजेंसियों का तो काम ही यही है। उन्होंने कहा कि तुम्हें असल तकलीफ ये है कि न ही अब तुम्हारे मतलब की GIT मिलेगी और न ही तुम्हारी आंखों और कानों वाली एजेंसियां मयसर आएंगी। उनका कहना था कि तुम तो कहते थे हमारी एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं जिनको सब पता होता है और पता होना भी चाहिए। जो मैं करता हूं, जो मैं फ़ोन करता हूं, इनको सब पता होता है। तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हिलाल और जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है, शर्म करो। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फॉरेन फंडेड फितना अदालत जाने से पहले JIT में पेश हो, मुल्क के खिलाफ साजिश करने, मुल्की मफाद को दाव पर लगाने, रियासत को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने, इक़्तिदार की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग करने का जवाब दे। इमरान खान के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि फॉरेन फंडेड फितना जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, अब अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। उन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितना की पूरी प्लानिंग बेनकाब हो चुकी है। कौमी मुफाद के खिलाफ आपकी साजिश की प्लानिंग और हॉर्स ट्रेडिंग बेनकाब हो गई, अब मजीद प्लानिंग की जरूरत नहीं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आलमी सतह पर मुसाबकत और पायदार बुनियादों पर बरामदात में इजाफे के लिए रवां माली साल में बरामदी शुबों के लिए बिजली टैरिफ को जारी रखने की मंजूरी दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसाक डार की सदारत में होने वाले इजलास में 5 बरामदी शोबों टेक्सटाइल, पटसन, चमड़ा, सर्जिकल और स्पोर्ट्स के लिए 30 जून 2023 तक ₹19.99 बिजली फराहम की जाएगी। ECC ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को गंदम की मुख्तस मिकदार की दरामद को यकीनी बनाने के लिए नए टेंडर्स जारी करने की भी हिदायत की। कौमी असम्बली ने 4 बिलों की मंजूरी दी है। सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक बहस का आगाज बुध से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले इजलास में आने वाले वसाइल से मुतालिक तहकीकाती कौंसिल के क़याम, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, सनती ताल्लुकात तरमीमी बिल और स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के क़याम के बिल की मंजूरी दी गई। ईवान ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज में ग्रेड 14 या उससे कम ग्रेड के मुलाजमीन की भर्ती के लिए मकामी डोमिसाइल को लाजमी करार देने की करारदाद भी मंजूर की। करारदाद वजीर ममलिकत मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ लोग इक़्तिदार की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऑडियो लीक्स ने हकीकी आज़ादी के बयानिए का पोल खोल दिया है। विफाकी वजीर सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है। मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी की वजह से मसाइल दरपेश हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में PTI की क़यादत सियासत करके आवाम को गुमराह कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोई भी सवाल किसी ज़रूरी वजह के बगैर मौखर नहीं किया जाएगा। बुध से ऐवान में सैलाब से मुतालिक बहस होगी।
قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 20 اکتوبر کو بلائے جانے والا اجلاس کو طلب کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ کو 15% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرعی پالیسی اجلاس کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیا گیا بیان کے مطابق عمومی مہنگائی اور جاری کھاتے کے خسارے میں کمی آئی ہے۔ اگست اور ستمبر میں جاری اور تجارتی خسارے میں کمی ہوئی اور روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیز کے نتائج ڈالر مزید سستا جبکہ روپے کی قدر مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 95 پیسے کی کمی کے بعد 217 روپے 97 پیسے پر پہنچ گیا۔ مزید کیا تفصیل ہے بتائیں گے حسن ناصر صدیقی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مثبت معاشی اور اقتصادی پالیسیوں کے باعث آج بھی ڈالر گراوٹ کا شکار رہا اور انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 95 پیسے کی کمی کے بعد 217 روپے 94 پیسے پر بند ہوا۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ ڈالر اپنی اصل جگہ پر بہت جلد آ جائے گا۔ ڈالر کی ریئل ویلیو، فیئر ویلیو اکارڈنگ ٹو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ، یہ اکنامکس کی ٹرمینالوجی ہے، اس کے حساب سے 200 سے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آرٹیفیشل ہورڈنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا تھا۔ مجموعی طور پر ڈالر کی قیمت میں اب تک 21 روپے 75 پیسے کی کمی ہو چکی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 218 روپے اور قیمت فروخت 220 روپے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ 100 انڈیکس 126 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,211 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 24 کروڑ 1 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 10 ارب 53 کروڑ 37 لاکھ روپے سے زیادہ رہی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 170 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 162 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 33 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج فی تولہ سونا 700 روپے کی کمی کے بعد 1,43,100 روپے پر بند ہوا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 600 روپے کی کمی کے بعد 1,22,685 روپے پر آ گئی ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن کریم ال عیسیٰ کو سول اعزاز ہلال پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی پروقار تقریب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹر محمد بن کریم ال عیسیٰ کو ہلال پاکستان عطا کیا۔ یہ اعزاز انہیں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں اعتدال پسندی، امن اور سماجی اور اقتصادی انصاف کے فروغ کو یقینی بنایا جائے۔ سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم ال عیسیٰ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو اسلامی فوبیا کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم ال عیسیٰ نے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھانے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ بروقت تشخیص سے چھاتی کے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ فوری تشخیص کی صورت میں مرض کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ ایوان صدر میں آگاہی مہم کی تقریب سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں میں چھاتی کے کینسر کا مرض بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے ہر کسی کی میموگرافی ممکن نہیں، بروقت تشخیص سے چھاتی کے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ جلدی تشخیص اگر چھاتی کے کینسر کی ہو جائے تو علاج ممکن ہے، اور سب کی میموگرافی کا نہ ہمارے پاس اسپتال ہیں، نہ اس بات کا امکان ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ خرچ ہوں۔ تو لہٰذا کیا پہلا طریقہ جو امریکہ میں بھی استعمال ہوا، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو گئے کہ سب کی میموگرافی کریں، تو سیلف ڈائگنوسس۔ پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوا کہ چھاتی کے کینسر کا ذکر ہونا شروع ہوا، اور گھروں کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہونے کا امکان بہت بڑھ گیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر پر قابو پانے کے لیے انسداد پولیو تجربات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں بھی چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی دی جانی چاہیے۔
सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से आगाही मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मुल्क में छाती के कैंसर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। छाती के कैंसर की रोकथाम के लिए मीडिया को अहम किरदार अदा करना होगा। हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के रिजल्ट को देखते हुए ये बात बहुत वसूख से कह सकते हैं कि अगर आप यूं ही दिए से दिया जलाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम 100% इस मर्ज की पहली स्टेज पर पकड़ने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ख़ुद को इग्नोर मत करें। सेहत के हवाले से अपनी ज़ात को अब इतनी इम्पोर्टेंस दें कि आप पर न सिर्फ ख़ानदान बल्कि कौम का इन्हिसार है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, आलमी इदारा सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदा डॉक्टर पालीथा माहिपाला और तिब्बी माहिरीन ने तकरीब से खिताब में समीना आरिफ अलवी की ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक आगाही की काविशों को सराहते हुए खवातीन को बरवक्त तशखीस और इलाज के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कैंसर को शिकस्त देने वाली खवातीन ने भी अलामात के हवाले से शुरा को बताया। इस मर्ज से बचाव की आगाही फैलाने से हम लाखों खवातीन की जिंदगियां बचा सकते हैं और इस आगाही मुहिम में मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम ऑडियो लीक्स इस बात की गवाही दे रही है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की सूरत में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजीद तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि रियासत के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने हकीकी जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानी दी। 2013 में भी नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद धरने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने कहा कि रियासत के ताकतवर अफराद को इस बात का इदराक होना चाहिए कि ऐसी साजिशें किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ थीं। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का नारा लगाने वाला खुद 4 दिन जेल में नहीं गुजार सकता। अगर इस साजिश पर हाथ नहीं डाला जाएगा तो रियासत को जो ये नुकसान पहुंचा चुका है, खुदा ना खास्ता फिर ऐसा कोई डेंट ना डाल जाए। हम वार्न कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती से खेलना बंद कर दे। रियासत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि मुखलस लीडर हमेशा कुर्बानी देता है। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने खानदान, अपनी जमात की कुर्बानी दी ताकि रियासत के मफादात को नुकसान न पहुंचे। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो आज से 6 माह कबल डूबती मुईशत थी को संभालने का फैसला भी मोहम्मद नवाज शरीफ ने रियासत के वसीतर मुफाद में किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए संजीदगी से सोचना होगा। PIA और रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के हवाले से क्या साराइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रही हैं फरहाना खान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर कारकर्दगी दिखाएंगे तो लोग साथ देंगे। उन्होंने कहा कि वक्त बहुत कम है, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए संजीदगी से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं, ये वक्त जलसों और सियासत का नहीं था। हर वक्त चोर चोर की रट लगानी, कभी मजहब कार्ड का इस्तेमाल करना, कभी करप्शन के नारे लगाने और साबित कुछ भी ना कर सकना, तो ये बातें करने की बजाय हम पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। देखें ना कितना बड़ा सैलाब आया पाकिस्तान में, करोड़ों लोग डूब गए हैं उसके अंदर, अभी तक निकले नहीं है उसमें से। उसके जो माँ बाद असरात हैं वो सालों तक रहेंगे। तो मुझे बताएं ये टाइम लड़ने का था या सैलाब ज़दगान की सर्विस करने का था। विफाकी वजीर का कहना था कि PIA और रूजवेल्ट होटल को बेचने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। उन्होंने बताया कि PIA का रवां साल रेवेन्यू टारगेट 138 अरब रुपए था, जबकि हम 155 से 160 अरब रुपए तक रेवेन्यू हासिल करने के लिए कोशां हैं। PIA ने इस सेमाई में जो गुजर गई है 50 अरब रुपए के करीब रेवेन्यू कमाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह माजी के किसी भी क्वार्टर से ज़्यादा अर्निंग है। हमारा एक कॉम्प्लेक्स है कराची में, PEC कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादातर दिफाई खिदमात सर अंजाम देता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चला जाए। इसके लिए जो लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज हैं उस पर काम कर रहे हैं। इससे तकरीबन 65 करोड़ रुपए सालाना की PIA को सेविंग होगी। कराची में एक जदीद तरीन सिमुलेटर आ चुका है A320 के लिए। पहले पायलट्स को बाहर भेजना पड़ता था और फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता था।
इससे तकरीबन 25 करोड़ रुपए सालाना PIA का बचेगा इस सिमुलेटर के आने से, जो हमारी एक्सपेंस बाहर जाने पे और ट्रेनिंग पे लग रहे थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट की तकमील 2023 में हो जाएगी। रवां माह के आखिर तक 24 जहाज PIA के बेड़े में होंगे और इस वक्त PIA को 40 जहाजों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहाजों के इंटीरियर्स को बेहतर बनाया जा रहा है। विफाकी वजीर ने बताया कि इदारे में मेरिट कल्चर को फरोग देने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। विफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान ने वाने वालों को बताया कि सैलाब मुतासर इलाकों में 2 करोड़ अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। ऐसे में लॉन्ग मार्च की कॉल देना मुतासरीन से दुश्मनी के मुतरादिफ है। सेनेट इजलास का अहवाल बता रहे हैं राहिल अंसार। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शहरी रहमान ने ईवान को बताया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $40 अरब दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक जानब मुल्क को सैलाब की वजह से मुश्किलात का सामना है तो दूसरी जानब एक पार्टी लॉन्ग मार्च करने पर तुली हुई है। 20 मिलियन लोग अभी भी से ज्यादा लोग इन नीड हैं, यानी ज़रूरत में हैं। कभी कोई टेंट के ज़रूरत में है, शेल्टर की नीड में है। सिंध एंड बलोचिस्तान कंप्राइज इतना किलोमीटर्स था कि 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे था। लेकिन इन हालात में ये हमारे अपोजिशन के जो लीडर हैं ऐवानों से बाहर खड़े होकर आज भी कहते हैं सियासत को, मुल्क को तकसीम ऐसे हिटलर की तरह फैशिस्ट जो हल्फ होता है। वजीर इंसदाद मनशियात शाहजैन बुख्ती ने ईवान को बताया कि तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से ड्रग सर्वे शुरू कर दिया गया है, जो आइंदा साल में मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क में बिजली के बहरान से निपटने के लिए निजी शोबे में 30 मेगावाट तक पैदावारी गुंजाइश के एनर्जी पार्क्स की तनसीब और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही दोनों ईवानों को मसावी मुद्दत के लिए देने की करारदादें पेश की गयी। अरकान ने निजी कार्रवाई के रोज अपने अपने इलाकों के अवामी नौयत के मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कामरान टिसोरी ने सिंध के 34वें गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे हलफ लिया। कराची से ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में कामरान टिसोरी ने बहैसियत गवर्नर सिंध ओहदे का हल्फ उठाया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अहमद अली एम शेख ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी, रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी, सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख, सईद गनी, साबिक मेयर वसीम अख्तर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और ख्वाजा इज़हारुल हसन के अलावा एडिशनल IG कराची ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सबको साथ लेकर चलूंगा। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 48 साल कामरान टिसोरी मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके खानदान ने पाकिस्तान हिजरत की और कराची में सकूनत इख्तियार की। कामरान टिसोरी ने 2016 में MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और MQM पाकिस्तान ने कामरान टिसोरी को गुज़िश्ता माह अपना डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर किया था। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जालसाजी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सियासी आकाओं और इमरानी फितने का अदाकार बनकर एक 4 साल पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड में जालसाजी की, जबकि हक़ाइक़ जानबूझकर छुपाकर अदालत से धोखाधड़ी और गुमराह करके वारंट हासिल किए। तर्जुमान का कहना था कि यही वजह है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब इस्लामाबाद पुलिस को वारंट के साथ रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही, जो कि एक कानूनी तकाजा है। ये हरकत विफाकी हुकूमत पर मुहिम जोई की मज़मूम साजिश है ताकि इमरानी फितने के लिए कुछ रिलीफ हासिल किया जा सके। वज़ारत दाखिला ने बताया कि रिकॉर्ड में जालसाजी करने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में ज़िम्मेदारान अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मुकदमे में जालसाजी और धोखाधड़ी के तमाम इब्तदाई सबूत हासिल कर लिए गए हैं, जबकि धोखाधड़ी, जालसाजी और रिकॉर्ड में टेम्परिंग करने पर अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा है कि एमनेस्टी स्कीम से मुस्तफीद होने से टैक्स छूट मिल जाती है, लेकिन ज़राए आमदन का सवाल मौजूद रहता है। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि तरमीम से मालूम होता है कि नैब मजीद रिकवरी नहीं कर सकेगा और प्ली बार्गेन के बाद भी मुल्जिम का एतराफ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यूं लगता है कि तरमीम से कबल भी नैब वसूलियां नहीं कर रहा है।
जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि मुकदमा 50 करोड़ रुपए से कम होने की सूरत में अज खुद खारिज हो जाएगा। केस की समाअत कल फिर होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफा 144 के निफाज और कानून के खिलाफ पीटीआई के असद उमर की दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदर मिनिला ने बाबर अवान के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद की। असद उमर ने 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद ईवान सनअत और तिजारत के सीनियर नायब सदर जमशेद शेख ने ताजर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि एहतजाज और धरनों की वजह से इस्लामाबाद की ताजर बरादरी और अवाम बुरी तरह मुतासर होती है। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारी मईशत किसी भी तरह के एहतजाज या धरने की मुतामिल नहीं हो सकती। कोई भी जत्था आता है वो आके बैठ जाता है, चाहे उसमें 100 बंदे हैं या 200 हैं या लाख है या 50,000 है। इसका असर खाली ताजरों पे नहीं पड़ रहा इस्लामाबाद में जी, इसका असर तमाम पूरे इस्लामाबाद पे पड़ता है और इससे हल्का पिंडी और इस्लामाबाद दोनों जाम हो जाते हैं। हुकूमत वक्त से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई जगह मखसूस की जाए शहर से बाहर। जब आप इनको कहते हैं कि आप शहर के अंदर आ जाए, G9 में आ जाए, F10 में आ जाए, तो फिर पूरा शहर जाम हो जाता है। हम चाहते हैं कि अगर मैक्सिमम इस्लामाबाद में किसी ने दाखिल होना है तो वो परेड ग्राउंड से आगे उसको नहीं आना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाका टैंकपोवा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदू वजीर आला लगाने की बात कर रही है। बीजेपी के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदुत्वा पार्टी वोटर्स की हिमायत के बगैर वजीर आला कैसे मुकर्रर कर सकती है। जम्मू कश्मीर अवामी मजलिस अमल ने श्रीनगर से एक बयान में चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक समेत भारतीय जेलों में नजरबंद तमाम हुर्रियत पसंदों की रिहाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब दिल्ली में फरवरी 2020 के मुस्लिम कुश फसादात के बारे में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भारतीय वजारत दाखिला, दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की नफरत अंगेज मुहिम और कुछ मीडिया चैनल्स को मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय वजारत दाखिला की लापरवाही, दिल्ली पुलिस का तशद्दुद, भारतीय मीडिया का फिरका वाराना बयानिया और मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम फिरका वाराना फसादात के जिम्मेदार हैं। भारतीय दारुल नई दिल्ली में हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश सिंह वर्मा ने हिंदुओं को मुसलमानों का माशी बाइकआउट करने की कॉल दी है। एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने हिंदुओं पर जोर दिया कि वो मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी बंद कर दे, मुसलमानों को मजदूरी भी ना दी जाए। बीजेपी रुकन ने हर्जा सराय करते हुए कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उनका माशी बाइकआउट बहुत जरूरी है। इस मौके पर मजमे से हलफ भी लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल टीचर्स का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। महकमे तालीम के हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद असातिज़ा ने जिनाह पाक से सूबाई असम्बली तक एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत इस्लाहात के नाम पर उनको पेंशन जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। असातिज़ा हुकूमत से सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी और अपग्रेडेशन का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि एहतजाज के आड़ में किसी को भी फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की कोशिश की तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान करप्ट, नाअहल और बात बात पर मुकरने वाला झूठा और मुनाफिक तरीन इंसान है। उसके नज़दीक इखलाकियात और कानून की कोई अहमियत नहीं, इसलिए वो लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। विफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एबटाबाद में नादरा के मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुर्तजा जावेद अब्बासी का कहना था कि अवाम को सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो गया है। जल्द ही डॉलर की कीमत भी 200 से कम होगी और महंगाई पर भी काबू पाया जाएगा। विफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासे ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सैलाब मुतासरीन बहाली के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। जाफराबाद और नसीराबाद अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मौलाना अब्दुल वासी का कहना था कि सैलाब ज़दगान की बहाली का अमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करना होगा। JUIFA अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे रही है।
कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत साजिद हुसैन तूरी का कहना था कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए हलफ जमा कर रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाना उनका एजेंडा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे और अवाम खुशहाल हों। वो जो मर्जी कर लें, बाशऊर अवाम उनकी बातों में नहीं आएंगे। इससे कबल वफाकी वजीर ने वर्कर्स वेलफेयर कॉलोनी फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। राब्ता आलमे इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा ने बतौर मेहमान खुसूसी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हर शख्स को मजहबी आज़ादी का हक है। बैनुल मज़ाहिब रवाबित वक्त की अशद जरूरत है। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ईमान का ताल्लुक है। अमन आलम के लिए जो जरूरी चीजें हैं आजकल और उम्मत मुस्लिमा का जो हकीकी सूरत आजकल पूरी दुनिया में पेश करते हैं, वो यही अजीम शख्सियत है। इस पर मैं खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक जिस्म और रूह का ताल्लुक है। सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान का दिफा है और पाकिस्तान का दिफा सऊदी अरब का दिफा है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना रिश्ता है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। सेमिनार में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज, मौलाना फजलुर रहमान खलील, इलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद लुधियानवी ने भी खिताब किया। सेमिनार के इख्तिताम पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने राब्ता आलमे इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी अरब के सफीर को सोवेनियर भी पेश किए। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम की गई है, जहां तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सबा जावेद। कराची के जिला मलीर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए कायम होने वाली खैमा बस्ती में तकरीबन 1500 टेंट लगाए गए हैं। टेंट सिटी में सैलाब ज़दगान के लिए बिजली, पानी, वॉशरूम्स, गंदे पानी की नकासी, सफाई और आर्जी क्लिनिक का बंदोबस्त किया गया है। इधर जितनी खिदमत कर रहे हैं ना भाई, जैसे माशाअल्लाह इधर रोटी का बंदोबस्त भी है और इधर पानी का ही बंदोबस्त है। पहले बहुत तकलीफ थी, यहाँ आए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बहुत मुतमीन हैं। गवर्नमेंट हमारा जैसे कोई घर में बड़ा होता है, बाप है, माँ है, ऐसे गवर्नमेंट के हम बच्चे हैं। इंशाल्लाह वो हमारी सुनेंगे भी और हमारी मालकी करेंगे। हुकूमत ने बहुत कुछ दिया, इधर बैठने के लिए टेंट दिया, हर चीज़ हम लोगों को मिल रही है, 2 टाइम का खाना भी मिल रहा है, उनके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। टेंट सिटी में आने वालों की रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है। ज़िले इंतज़ाम में पूरी कोशिश करिए कि इनको बहुत अच्छी सहूलियात दे और इनको एक जो यहाँ पे इनका मुश्किल वक्त है उसके दौरान उसका एक अच्छा उनका वक्त गुजरे। सिंध हुकूमत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन आबाई इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल होने तक टेंट सिटी में रहेंगे। मुख्तलिफ फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन को नाश्ता और खाना भी फरहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मामूलाती जिंदगी बहाल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इनके लिए खैमा बस्तियाँ आबाद करना एक अहसन इकदाम है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का अहसन इक़दाम। गवर्नर पंजाब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा की 2 सेमेस्टर्स की फीस माफ़ी का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। सरवर कौनैन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से एक बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। है तो जो रोज महशर से है हरासा। हर सू दरूदो सलाम की सदाएं, और क्यों ना हो वजह तख्लीक के कायनात का मिलाद जो है। ये मनाजिर हैं PTV की जानिब से सजाई गई पुरनूर महफिल मिलाद के।
अलैना उनके दामन से वाबस्ता जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। नात ख्वाह पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की मिदहत बयान करते रहे और सुनने वालों पर वजद की कैफियत रही। सेक्रेटरी इत्तलात शहीरा शाहिद ने भी महफिल में खसूसी तौर पर शिरकत की और महफिल के इनेकाद और शिरकत को सादत करार दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा इस मौके पे बहुत अच्छे इन मिलाद का एहतमाम करता है। बहुत अच्छे बयान और बहुत अच्छी नातें पढ़ी गई, खुशहालान आवाज़ें थीं। हमारे लिए ये जो हस्ती है ये सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। दीगर शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात में शिरकत से न सिर्फ ईमान को ताजगी मिलती है बल्कि कल्ब और रूह को तस्कीन भी। बहुत ही अच्छा लगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी महफिल हो उसमें तो वैसे ही शिरकत करनी चाहिए। एंड इट वाज सो सरील एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत महफिल थी, बहुत अच्छी महफिल थी। इसमें जिन्होंने नात पढ़ी हैं वो ऐसी पढ़ी हैं कि रूह को लग गई हैं नातें। मुझे बहुत अच्छा लगा और सब ने बहुत अच्छी नातें पढ़ी और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो अल्लाह का शुक्र है हमें ये मौका मिला और हम खुश नसीबों में से एक हैं। दरूदो नात की इस महफिल का इख्तिताम आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने से हुआ। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दरबार आलिया ईदगाह शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि रब्बे करीम ने हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवाए हसना पर अमल पैरा होने में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत, सीरत पाक और सुन्नत मुबारका से कायनात का हर जर्रा मुनव्वर है। आखिर में वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली, तरक्की, अफवाज पाकिस्तान की सरबलंदी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मोहसिन पाकिस्तान मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी मनाई गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बानी थे। मई 1998 में उन्होंने भारत को जवाब में तजर्बाती एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया। मोहसिन पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद भी किया गया। जो डॉक्टर साहब ने 5 नुक्ते बयान किए कि एक पर्पस और मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेबिलिटी ऑफ लीडरशिप और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो, ऑर्गेनाइजेशन मेरिट ड्रिवन हो और आप अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें और उनको वो वसाइल और स्पेस दें कि जिसमें वो काम कर सकें। तो खा वो एटमी मैदान हो या वो कोई भी मैदान हो, उसमें कामयाबी फिर कदम चूमेगी और हमें इन असूलों को कौमी ज़िंदगी में भी अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब contributions for Pakistan's progress, Pakistan's security, Pakistan's defense needs no mention. Everybody knows that what valuable task or contribution he made for us. The nuclear program was not merely a dream, it was a passion. He lived on that program. He dreamt of that program. And he insisted that Pakistan not merely deserved this program, but the very survival. कौमी असम्बली की खारजा अमूर की मजलिस कायमा का इजलास मोहसिन दावड़ की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। वजारत खारजा के हुकाम ने इदारा जाती स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल समेत रूसी और वस्ती एशियाई रियासतों के साथ इजारत बढ़ाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मजलिस कायमा के साइफर के हवाले से सवाल के जवाब में दफ्तर खारजा के हुकाम ने बताया कि साइफर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। मजलिस कायमा ने आइंदा इजलास में साइफर की सिक्योरिटी डी कोड करने के तरीक़ाकार समेत वहाँ तैनात लोगों की अहलियत से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी हवाबाजी का इजलास सेनेटर हिदायतुल्लाह की सदारत में हुआ। इजलास में एविएशन के शोबे को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। PIA अमले की दुबई एयरपोर्ट पर गफलत के मामले पर कमेटी को बताया गया कि मकामी लेबर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की गई है। दोनों मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم اس دوران شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔